Namaste. Now we are going to discuss the nominal exchange rate, purchasing power parity, exchange rate, and real effective exchange rate. So first of all, we will discuss about the nominal exchange rate because this is so important in macroeconomic. Okay, that's why we have to learn, means we have to understand what is nominal exchange rate. Okay, first of all, we suppose we take the value of $1 equal to 70 rupees. Okay, तो अगर हमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है तो हम किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, लाइक $1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ $1 पर रुपीज़, व्हाट इज़ द value of ₹1 per dollar. But according to the world standard, we have to calculate the value of a dollar per ₹1. Okay, so I have taken this the value like $1 per 70 rupees. So according to the mathematical calculation, I have calculated the value like 1 upon 70 equal to 0.14. So nominal exchange rate is equal to $0.14 per ₹1. Okay, means I have taken the 70 rupees equal to $1. You can take now, I think 82 rupees equal to $1 in now Indian current economy. Okay, but for simply calculations, for simple calculation, I have taken 70. Okay, if the rupee appreciate, then the value of 0.14 will increase. Okay, I will tell in few minutes after that, after the explanation of this. Okay, now we will discuss about purchasing power parity exchange rate. Already we have discussed about the nominal exchange rate. Suppose now we take the same value of nominal exchange rate equal to $1 equal to 70 रुपीज़. ओके, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट में क्या होता है, समझो एक कमोडिटी बास्केट है यूएसए का, ये है इंडिया का. इसमें जो कमोडिटी है इस बास्केट में, इसकी वैल्यू है समझो $1. और इस बास्केट में जो जो सामान है, मतलब इंडिया के बास्केट में, उसकी प्राइस है 35 रुपीज़. इन दोनों भी बास्केट में जो भी सामान है, जो भी कमोडिटी है, सेम क्वालिटी के है, सेम क्वांटिटी के है, दोनों में भी. ओके, तो इस बास्केट की प्राइस की बेसिस पे इसका एक्सचेंज रेट निकाला जाता है, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट. ओके, तो इस बास्केट तो सेम है, इसलिए $1 इक्वल टू ₹35. ओके, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, दैट इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट लाइक अब्रॉड प्राइस. ओके, अपॉन डोमेस्टिक प्राइस. We don't have a problem like we can calculate also domestic upon abroad, but that is not a standard. We have to calculate according to the world standard, that is abroad price is $1 and Indian price is, that is domestic, is 35 rupees. Okay, you can do mathematical calculation and you can get the value, that is $0.28 per rupee. Okay, this is a purchasing power parity exchange rate. This is simple. Okay, अगर दोनों कंट्री की, समझो यूएसए की और इंडिया की, इन्फ्लेशन रेट अगर डिफरेंट है तो ये पीपीपी एक्सचेंज रेट हर टाइम चेंज होता रहेगा, मतलब हर टाइम चेंज होगा. समझो अगर इधर बर्गर की, मतलब इस कमोडिटी की, समझो मैंने मतलब अज्यूम किया है ये बर्गर है इसमें और इसमें भी बर्गर है. ओके, अगर इंडिया में इसकी प्राइस चेंज हो गई, 35 से 40 हो गई, 50 हो गई, अगर 70 भी हो गई, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट
मतलब चेंज होता रहेगा हर टाइम, ओके, ये सेम नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन रेट पे ये डिपेंड रहेगा, परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। और एक दूसरी बात, व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट is the same, okay, means $1 equal to 1 rupees, that time we can say the currencies are at PPP, means purchasing power parity, okay। अगर दोनों भी कंट्री की मतलब करेंसी सेम हो जाएगी, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट सेम हो जाएगा, $1 इक्वल टू 1 रुपीज़, दैट टाइम वी कैन से करेंसीज आर एट PPP, ओके। सॉरी, मैंने गलत कहा कि $1 इक्वल टू 1 रुपीज़, सॉरी, दैट वाज माई मिस्टेक। व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ओके, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू PPP एक्सचेंज रेट, जब इक्वल होगा, ओके, दोनों PPP एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब इक्वल हो जाएंगे, मतलब इन पास्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन $0.14 पर रुपीज़, ओके, और PPP कितना है 0.28, ओके। व्हेन दिस बोथ वैल्यूज आर $0.14 पर रुपीज़, दैट टाइम वी कैन से द Indian currency and USA's currencies are at purchasing power parity, okay। this is so important concept, okay। अगर nominal exchange rate और purchasing power parity exchange rate अगर सेम हो जाते हैं, तभी उसको हम कहेंगे both currencies are at purchasing power parity, okay। now we are going to discuss the most important concept, that is real exchange rate, okay। in real exchange rate we have to, means we know already, I have told you that is what is nominal exchange rate, what is the PPP exchange rate. Now that concepts are useful in the understanding of real exchange rate, okay। suppose we have taken that is $1 equal to 70 rupees, means nominal exchange rate equal to $0.14 per rupees, okay। फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझाने के लिए मैंने बास्केट लिया, और बास्केट में मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन बर्गर, ओके। ये है USA का बास्केट और इंडिया का। इस बास्केट की प्राइस सपोज $1 है और इसकी 35 रुपीज़ है, मीन्स PPP एक्सचेंज रेट में मैंने जो ली थी वही लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। हमें अभी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस निकालना है, ओके। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे मतलब किस चीज़ पे डिपेंड होगा, ओके। उसके 3 पैरामीटर होते हैं ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के। अगर हमें इंडिया का प्रोडक्ट बाहर भेजना है, समझो USA में भेजना है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब किस पर डिपेंड होगा, ओके। हमें इसमें एक कमोडिटी ली है, वो है बर्गर है। अगर बर्गर का कॉम्पिटिटिवनेस हमें निकालना है तो किस चीज़ पे डिपेंड होगा, वो उसके 3 पैरामीटर्स है। प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया, अगर इंडिया में प्राइस उसकी कम है तो वो बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा कंपेयर विथ USA। अगर उसकी प्राइस कम है तो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, ओके। और प्राइस ऑफ अ बर्गर इन USA, अगर USA में बर्गर की प्राइस इंडिया के कंपेयर में अगर ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंडिया से बाहर। अगर उस वहाँ USA में बर्गर की प्राइस कम होगी कंपेयर विथ इंडिया, then we can't export, okay, means our product will not be competitive, okay, compared with USA। और तीसरी चीज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ओके। इस पर भी हमारा एक्सपोर्ट, इस कॉम्पिटिटिवनेस बहुत डिपेंड करता है, ओके। तो हमें अभी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस समझना है। मैंने जो इधर बताया वही सेम यहाँ हो जाएगा, ओके। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हम इसका इक्वेशन तैयार करने वाले हैं अभी, ओके। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ USA विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। इधर मैंने USA लिया है, ध्यान रखो USA मतलब हम इधर USA का कॉम्पिटिटिवनेस निकालने वाले हैं कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ओके। अगर प्राइस ऑफ इंडिया मीन्स प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्राइस ऑफ अ बर्गर इन इंडिया अगर बढ़ जाती है तो USA का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, समझ जाओ। मतलब इधर बर्गर 35 रुपये में मिल रहा है, ओके, मतलब $1 में 2 बर्गर आ सकते हैं, क्योंकि इधर प्राइस हमने 70 रुपीज़ पर इक्वल टू $1 लिए।
अगर इधर बर्गर की प्राइस इंडिया में 70 रुपीज़ हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, समझ रहे हैं आप। मतलब बर्गर की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो यूएसए का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, मतलब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और यूएसए वाले वहाँ मतलब इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये होगी इधर इस पॉइंट की बात। और अगर समझो मैंने इधर ही बताया था कि अगर यूएसए में बर्गर की प्राइस अगर बढ़ जाती है कंपेयर विद इंडिया तो यूएसए का कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। अगर इधर $1 में बर्गर मिल रहा है, अगर $2 में मिल रहा, अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा ना। इसलिए the trade competitiveness of USA with respect to India is inversely proportional to the price of a burger in USA। ओके, ये हो गई सेकेंड पॉइंट की बात। अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है ओके तो यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। ओके ओके, इसे समझो इधर 0.14 है, ओके $0.14 पर ₹1। ओके, इसमें अगर ये $0.14 की कीमत अगर बढ़ जाएगी, समझो अगर हमारा रुपी एप्रिसिएट हो जाएगा, ओके मतलब डॉलर की वैल्यू इधर बढ़ जाएगी। समझो अगर इधर अगर $0.5 पर ₹1 हो गई, ओके तो इधर मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ओके, इसलिए यूएसए का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। ओके, मतलब इधर $1 इक्वल टू ₹2 हो जाएगा ना, मतलब तो इधर कॉम्पिटिटिवनेस यूएसए का बढ़ जाएगा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बर्गर बाहर। इसलिए यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो यूएसए का कॉम्पिटिटिवनेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। सो नाउ वी can calculate the trade competitiveness of USA with respect to India. This is the standard format. Okay, according to the standard we can calculate the USA's competitiveness with respect to India. Now we have learned, means we have we do understand that which value is a directly proportional, which value is inversely proportional. So now we can put in the equation, okay, that is domestic price into nominal exchange rate upon abroad price, means abroad price means the price in the USA and domestic price means price in the India. Okay, now this price can go down and we can write like abroad price upon domestic price. Okay, nominal exchange rate upon abroad price upon domestic price. Okay, I have discussed that abroad price upon domestic price equal to PPP exchange rate, that is nominal exchange rate upon purchasing power parity exchange rate. Okay, if you don't understand you can revise the video. Okay, is domestic price equal to domestic price into nominal exchange rate upon abroad price, and this comes like this. If you know you can understand. Okay, now nominal exchange rate equal to $0.14 per ₹1। Okay, and PPP exchange rate is abroad price upon domestic price. Okay, domestic price is a 35 and abroad price is $1. Okay, this comes like this, means I have put this value at the same this. Okay, and we can calculate simply, that is, and the value get that is half 1.2, means the trade competitiveness of USA with respect to India is half. Okay, means India is a more competitive, you can see this. Okay, if this value will get increases, means if the value get 1 2 3 4, means that time we can say the USA's competitiveness with respect to India is a more, but here the competitiveness of USA is less, because we know, means in a 70 rupees we can sell the 2 burgers, means our competitiveness is more, that is 2, and USA's competitiveness is 1.
okay, is less compared with the India, okay, and this is called the real exchange rate, okay. Real exchange rate is equal to nominal exchange rate upon PPP, means real exchange rate, that is US's with respect to India, that is nominal exchange rate upon purchasing power parity exchange rate, okay. Now I think you understood everything about this. Now we know now, is we are aware about this, like when the currency, either that in a real or in nominal format, get appreciate, that means the trade becomes less competitive, okay. अगर $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाएगा, इस the currency get depreciate, that time trade become competitive with respect to US, means US's trade will less competitive and India's trade will get more competitive, okay. अगर $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाएगा, मीन्स इंडियाज करेंसी गेट एप्रिसिएट, ओके, दैट टाइम द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया गेट लेस कॉम्पिटिटिव, ओके. You should know, means you can write this statement, if the currency of India get appreciate, that time the trade competitiveness of the India with respect to any country, that will less competitive, means appreciation of the currency is inversely proportional to the trade competitiveness. You can remember this, okay. और दूसरी चीज़, ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ USA विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ये जो वैल्यू आई है 1.2, अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है, समझो अगर ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तब USA का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ओके. ये इंडेक्स है, ट्रेड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, जो हाफ आया है वो, इसको हम रियल एक्सचेंज रेट बोलते हैं. और अगर ये हाफ से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 अगर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द USA विद रिस्पेक्ट टू इंडिया गेट इंक्रीज्ड, ओके. और अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 हो जाता है, मतलब ये 1 हो जाता है, तब हम कहेंगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट है, ओके. उस समय हम कहेंगे कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस 1 है, मतलब रियल एक्सचेंज रेट 1 है. उस कंडीशन, मतलब ये जो इसकी और इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तभी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है. ये बात समझ लो. और दूसरी एक 2 टर्म इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी, तो वह है नीर एंड रील, ओके. नीर मीन्स नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रील मीन्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. तो ये क्या होता है, मतलब अगर इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर निकालना है, तो मतलब ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, तो इंडिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. मतलब एक ये जो है, मतलब ये जो दोनों है, ये एक कंट्री के साथ नहीं कर सकते, ओके. इसमें एवरेज लिया जाता है, मतलब हर एक कंट्री, मतलब इसमें हम डिफरेंट कंट्री ले सकते हैं. अगर इसमें हमने सिर्फ USA का लिया था, इसमें USA लेंगे, चाइना लेंगे, रशिया लेंगे, हर एक का एग्रीगेट एवरेज होगा, मतलब वेटेज एवरेज हो जाएगा, और सब कंट्री के साथ कैलकुलेट करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके. मतलब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट सेम है, पर इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ लिया जाता है, और इसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में सिर्फ एक कंट्री के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसमें वेटेज एवरेज लिया जाता है, मतलब डिफरेंट कंट्री का सेम ही है. मतलब अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके हिसाब से ही इसको सॉल्व करेंगे, पर इसमें एवरेज ही है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट लगता है. इसका फार्मूला डिफरेंट है, मतलब इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, ठीक है. थैंक यू.